Hello students, welcome back to Maths Planet. Today we are going to start chapter first of class 8. Okay, this is from Viva publication. Last year you might have watched the video on our channel that have been related to S-Chan publication of class 9. From this session we are going to start uploading videos related to class 7th, 8th, 9th and 10th. I hope you will like our video and you like the method that we are teaching here. Okay, so let us start exercise 1.1. But before starting the questions, let's have a look on the concept on which these problems are based. Okay, concept is rational number. You can look upon here rational number. So first understand what is the rational number all about. Any number which can be represented in the form of p upon q, that is called rational number. p upon q means fraction की form में जो भी number हम लोग represent कर सकते हैं. In definition it is mentioned that whatever number that can be represented. Okay. So if we take an example of 1, so can we write it as a fraction like 1 upon 1? ओके राइट, वी कैन राइट. हाँ, अगर किसी का फॉर्मेट चेंज होना होता है देन वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट वैल्यू चेंज शुड नॉट बी चेंज. जब भी हम लोग किसी को रिप्लेस करते हैं किसी भी नंबर को, तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. जैसे कि 1/10 का लिखने का फॉर्मेट अलग है एंड 0.1 का लिखने का फॉर्मेट अलग है, तो इक्वल का साइन तभी आएगा जब इनकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े. एक्चुअल में वैल्यूज सारी इक्वल है. ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते टाइम नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. जैसे कि 5 है, 5 कैन बी रिटन एज 5.1. सो it is expressible in the form of p upon q. But one thing you have to remember, the number that can be represented in the form of p upon q where q should not be equal to 0. q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. We should remember that q अगर किसी भी फंक्शन के अपॉन में 0 लगा देते हैं, न्यूमरेटर पार्ट में तो 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर पार्ट में 0 नहीं हो सकता. न्यूमरेटर पार्ट में अगर 0 है तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. अगर डिनोमिनेटर में है तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग पढ़ते हैं अनडिफाइंड फंक्शन. ऐसी कोई भी चीज क्या होती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. अदरवाइज आप सीधे ट्रीट कर सकते हैं कोई भी फ्रैक्शन साथ में जिसके डिनोमिनेटर पार्ट में 0 ना हो, दैट विल बी रेशनल नंबर. ओके, सारे इंटीजर्स ये भी आपके रेशनल नंबर्स में आएंगे, सारे होल नंबर और सारे नेचुरल नंबर. ओके, ऑल दीज सेट विल लाई इन द कैटेगरी ऑफ रेशनल नंबर्स. सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ chapter first, that is 1.1. First question you can see on the board. We have to add 3 upon 7 and 6 upon 7. We have to add these two fractions. So here are two different questions on the board. You can see first type of question, here denominators are same, and in second part of question here denominators are different. So we will try to learn that how to add or subtract the rational numbers which have different denominators and same denominators. Alright, so if denominator are same then LCM इनका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. उसके बाद में सेम नंबर्स को यहाँ पे लिख के, जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे ऐड करना है, तो 3 plus 6 gives us 9 upon में 7 भी. So this is result for addition of this question. Okay, again one thing we have to remember whenever we are subtracting or adding two rational numbers in which denominator is negative. Okay, denominator अगर negative है तो उसका ये माइनस साइन आप ऊपर की ओर भी शिफ्ट कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू जो फ्रैक्शन की है वो निगेटिव ही रहेगी. ओके, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं -7/25. We have to add this fraction, so put plus sign here, -11/25.
Okay. Now open the bracket, minus 7 upon 25 plus minus 11 upon 25. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इसी नंबर को ले लेते हैं और ऊपर के सेम सारे नंबर एज इट इज विद साइन नोट कर देते हैं, -7 एंड -11. ओके. We already have learned this thing in class 7 that if we have to add two numbers where signs are same, अगर साइन सेम है तो साइन हम लोग क्या रखते हैं, जो इन दोनों नंबर्स के साथ में साइन होता है वही साइन यहाँ पे चूज करते हैं एंड वैल्यूज आर एडेड टुगेदर. तो 7 माइनस के 11 माइनस के बोथ बिकम्स -18 अपॉन 25. तो ऐसे ही रहेगा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. Now come to next question, second. Okay, second question. Here you can see denominators are different in both of the parts. तो denominator को same कैसे करते हैं उसकी बात कर लेते हैं. Okay, so first we will put it in proper form, -1 upon 3 plus 3 upon 4. Okay. LCM जब हम लेंगे तो 3 4 12. यहाँ पे लिख देते हैं 3 4 12 एंड उसी 4 की मल्टीप्लाई जब -1 में होगी तो -4 आएगा यहाँ पे. 3 4 12 एंड 4 1 4. 4 3 12 एंड 3 3 9. नाउ वी कैन कैलकुलेट हियर. जब टू नंबर्स को, टू इंटीजर्स को ऐड किया जाता है देन द साइन इज टेकन व्हिच इज ग्रेटर. तो यहाँ पे प्लस की 9 है और माइनस का क्या है 4 है. तो साइन प्लस का लिया जाएगा और वैल्यू वो ली जाएगी तो इन दोनों का डिफरेंस होता है. +9 -4 gives us +5 upon 12. This is the required answer. जब प्लस होता है तो प्लस को डिनोट करने की नीड नहीं होती. ओके. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन which is also of same type. तो इससे पहले तो प्रॉपर फॉर्मेट में ले आते हैं हम लोग. प्लस माइनस 4 upon 5. अगेन LCM 7 5 35. 7 5 35 and 5 5 25. 5 3 and 3 4 12. So it becomes, क्योंकि यहाँ पे साइन सेम है तो इसलिए साइन माइनस कर लिया जाएगा लास्ट क्वेश्चन की तरह. यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया था माइनस माइनस के ऐड हो गए थे तो वैसे यहाँ पे माइनस माइनस के इंटीजर्स ऐड हो जाएंगे. माइनस का साइन एंड 37 upon 35. So this is explanation of two rational numbers addition in both cases when the denominator is same or in the case when denominator is different. How we can add or subtract two rational numbers. I hope you are clear with the method. The remaining parts C and D that you will try to attempt at your home as your homework. Now we are going to solve question number 3. Okay guys, you can see here on the board that here is mentioned question number 3 of exercise 1.1. Okay, find the sum and express the sum as mixed fraction. First we have to find the addition of this question, then that fraction will be represented as मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने से पहले अगेन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 7 but still we will revise the concept that what is the proper fraction and what is improper fraction. After that mixed fraction. After getting the concept we will come to this question, proper fraction. Second one is improper fraction. And third is mixed fraction. Okay. So let's have a look that what all these kinds of fractions are. Okay. When the value of denominator is
ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर. ओके, न्यूमरेटर क्या होता है? इज ग्रेटर, सॉरी, न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर. Then this type of fraction is called proper fraction, like 5/7, 3/8. In these two fractions, denominator part is greater. So whenever the numerator part is smaller and denominator part is greater, then it is called proper fraction. In improper fraction, you can say that numerator is greater and denominator is smaller. Okay, like 9/2, 11/8. This type of fraction, you can say that these are improper fraction. Okay, because there is a scope of dividing this number. यहाँ पे तो देखिए 7 से 1 टाइम भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, 1 टाइम भी डिवाइड नहीं हो सकता. बट इनसे हम एक कंक्लूजन और भी निकाल सकते हैं इन दोनों फ्रैक्शंस को देख के, दैट ऑलवेज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी लेस देन 1, क्योंकि ये 1 टाइम भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 से लेस होगी. एंड द वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. इसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी? 1 से ग्रेटर होगी. व्हेन दिस फ्रैक्शन इज रिटन इन मिक्स्ड फॉर्म, जिसमें होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो, तो इस टाइप के फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे कि अगर हम इसे डिवाइड करना चाहें इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, 2 4 जा 8, तो 4 टाइम्स तो कंप्लीट डिवाइड हो गया. जो रिमाइंडर है उसे हम लोग न्यूमरेटर पार्ट में रखते हैं. 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना है? 1. तो 1 को न्यूमरेटर पार्ट में और डिनोमिनेटर पार्ट में सेम जो पहले से था उसे रख सकते हैं. सेकेंडली, अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो 8 1 जा 8, हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड हो रहा है? 1 टाइम. 8 1 जा 8, रिमाइंडर को ऊपर रखते हैं 3/8. So this is how you can represent it in the mixed fraction form. Alright. So one thing also we can conclude that only improper fractions can be represented in the mixed form. जिसका न्यूमरेटर क्या होता है? स्मॉल होता है. तो सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. चलिए, तो अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया, अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट फर्स्ट, 27. एंड जब भी हम लोग को कोई भी नंबर इस टाइप का दिया होता है, ठीक है, इस टाइप का गिवन होता है, तो क्या करते हैं? पहले उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 27/20 प्लस 15 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 15/1. ओके, अब इसका नेक्स्ट टाइम, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था? जब डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल नहीं होते, ओके, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, देन व्हाट वी डू? मेक देम इक्वल एंड टेक एलसीएम. 20 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20. 20 क्योंकि सेम है तो इसलिए 27 को एज इट इज नोट होगा. एंड 120 जा 20 15 जा क्या हो जाएगा? 315. ओके, 315 आ जाएगा. अभी क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है. एंड 342 आएगा. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. 20 बन जा 20, 127 जा 27, 120 जा एंड 20 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 300. यहां पे मिस्टेक हुई, ठीक है. सो यू विल करेक्ट इट इन योर नोटबुक्स. 15 20 जा 300 आ जाएगा, तो रिजल्ट हम लोग का आएगा 327. ऑलराइट, 20 यहीं पे रहेगा. नाउ कैन यू टेल दैट वेदर इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट स्मॉलर है, सो वी कैन लुक हियर दैट इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे करते हैं एक बार फिर से देखते हैं. 20 के टेबल में 32 को डिवाइड करेंगे. 20 बन जा 20, रिमाइंडर आया हम लोगों के पास
12 के साथ में जब 7 आएगा तो 127 आ जाएगा। इसे जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 26 जा 120 और रिमाइंडर क्या आ जाता है 7। तो रिमाइंडर एंड वाला न्यूमरेटर पार्ट में नोट करते हैं एंड डिनोमिनेटर सेम रहता है जो पहले से होता है। दिस इज योर मिक्स फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इस तरह से मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। I hope you are clear with the method. If you are not clear, then we will again try to understand it by some other example. Solution is, first put it in a proper fraction. 25 plus 4 plus and minus की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 11/4। अभी आप देख सकते हैं that numerator is same, so LCM will also be same. 25 minus 11 that gives us 25 में से 11 माइनस होते हैं तो क्या होता है 14 हो जाता है 14/4। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जैसा कि प्रीवियस पार्ट में किया था। 4 3 जा 12, 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, रिमाइंडर आ रहा है 2 and 4। ओके, अभी आप इसे डिवाइड कर सकते हैं या फिर यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, बट we will try to make it in proper mixed fraction। तो कैसे करेंगे, अभी ये 14/4 आ रहा है उसे हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14 and 2 2 जा 4। तो प्रॉपरली अगर इसे नोट करें हम लोग तो रिजल्ट आएगा 7/2। 2 से इसे डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, डिनोमिनेटर सेम, तो 3 होल 1/2। ओके, दिस इज रिजल्ट फॉर part B. Again you can see here numbers, these are fractions where denominators are different। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, LCM लेना होगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग इसे भी लिख के LCM लेंगे, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर में आएगा एंड उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो दीज 2 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आर for your homework. You will try to attempt. If you find any kind of difficulty, any kind of query, then you can put it in comment box. We will try to resolve your doubt in next session. Okay, now coming to question number next. So guys, this session includes only this much questions. I hope you are able to understand the idea well and you can solve n number of problems based on the same concept. We will meet in the next session with some concept and questions of exercise 1.2. And if you enjoy this video, you like the video, you are able to understand the video, then subscribe our channel and like the video. We will meet in the next session. Till then, take care. Thank you.